A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new multiple choice question related to the chapter 11 and chapter 12 of class 12 business studies. As you know, in the last few videos, we discussed the various important multiple choice question related to the chapter number 11 and the chapter number 12. You can see that in the last video we discussed at least 16 multiple choice question which are related to the chapter 11, that is a marketing management. Today we will discuss a few multiple choice question which are related to the chapter number 11, that is a marketing management, and thereafter we discussed a 15 very important multiple choice question related to the chapter 12, that is a consumer protection. So without creating any delay, let's we move to the important multiple choice question related to the chapter number 11 and 12. So first of all, we will start from the question number 17, because we already discussed multiple choice question number from 1 to multiple choice question to क्वेश्चन नंबर 16 ऑलरेडी इन द लास्ट वीडियो, यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेके 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 11 से, और अभी हम लोग चैप्टर नंबर 11 से कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द चैप्टर नंबर 12 एंड वी विल discuss few of the important multiple choice question related to the chapter 12. So the first multiple choice question of today's video is question number 17. The question number 17 says that personal selling creates effective demand which result in increase in income. With increase in income, there will be more product and services which in turn brings economic growth. This statement signify the importance of personal selling too. इसमें एक लाइन बोला है, पर्सनल सेलिंग क्रिएटिंग इफेक्टिव डिमांड विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन इनकम, देयर विल बी मोर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच विल टर्न बिकम इकोनॉमिक ग्रोथ. आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट पर्सनल सेलिंग की कौन सी इंपॉर्टेंस को डिनोट कर रहा है. द फर्स्ट वन इज़ अ बिजनेसमैन, सेकेंड वन इज़ अ कस्टमर, third one is a society, and number 4 is a none of the above. So you can see that यहाँ पर हम economic growth की बात कर रहे हैं, as well as we discuss in this multiple choice question is that which in turn brings economic growth. economic growth की भी बात कर रहे हैं. So यहाँ personal selling के businessman के point of view से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट अगर हम कस्टमर की बात करें तो यहाँ कस्टमर को लेकर भी बात नहीं हो रही है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग बात करें दैट इज़ विच इन टर्न ब्रिंग्स इकोनॉमिक ग्रोथ. सो यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ को का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सोसाइटी. इट मीन्स द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 इज सोसाइटी. सो इसके लिए कुछ हिंट भी दिया हुआ है. यू कैन सी दैट पर्सनल सेलिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग गुड्स बाय सर्विंग बिजनेसमैन, customer and society. It serves society by converting latest demand into effective demand. यानी उनका डिमांड इंक्रीज हो रहा है. क्यों? क्योंकि उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है. सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनकम बढ़ने से डिमांड भी क्रिएट हो, लेकिन पर्सनल सेलिंग के हेल्प से हम क्या करते हैं, सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करते हैं और सोसाइटी के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज करते हैं, और उनके लेटेस्ट डिमांड को हम उनके इफेक्टिव डिमांड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. So now we will move to the question number 18. When Sarita opened the door, on hearing the doorbell, a person was standing who was selling Britannia word encyclopedia. Here Britannia is using which element of promotional mix? Britannica world encyclopedia. तो ब्रिटानिका यहाँ पर किस एलिमेंट की बात कर रहा है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा. सरिता ने डोरबेल की आवाज़ सुनी और पर्सन जो उसके सामने खड़ा था वो बेच रहा था, इंसाइक्लोपीडिया सेल कर रहा था. किस कंपनी का? ब्रिटानिका. तो जहाँ पे जो ब्रिटानिका वर्ड है इज़ यूजिंग विच एलिमेंट ऑफ प्रमोशन सेल, इट विल बी रिलेटेड टू द ऑप्शन ए पब्लिक रिलेशन, बी सेल्स प्रमोशन, सी इज़ एडवर्टाइजमेंट एंड डी इज़ अ पर्सनल सेलिंग. तो यहाँ पर्सनल सेलिंग की बात हो नहीं रही है. सेल्स प्रमोशन तब होता है जब कुछ स्पेसिफिक टेक्निक यूज होती है,
पर्सनल सेलिंग तो है, बट यहाँ पर मोर फॉर जो यहाँ पे ब्रिटानिका वर्ल्ड का जो नाम है इंसाइक्लोपीडिया, ये एडवर्टाइजमेंट का प्रमोशन मिक्स क्राइटेरिया को डिनोट कर रहा है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अभिनव मेहता मार्केटिंग मैनेजर ऑफ रूप कॉस्मेटिक इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पुअर सेल। अभिनव मेहता एक मार्केटिंग मैनेजर हैं रूप कॉस्मेटिक के, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं दैट इज़ अ पुअर सेल्स, यानी उसकी कंपनी की सेल्स अच्छी नहीं है। व्हाट मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही कैन ऑप्ट टू टारगेट अ लार्ज पोजीशन, अगर वो किस तरीके से एक लार्ज पॉपुलेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। यू कैन सी दैट एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम बहुत बड़े पॉपुलेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो द वेरी ईजीएस्ट and very simple mode of communication by which every salesman target a large position, which are as follow, that is a newspaper, television, radio. So according to this question we can see that the option is D, that is all of the above. So the right answer is all of the above, and hint में इसके लिए regarding दिया भी हुआ है। You can see that Abhinav Mehta can adopt following forms of communication to advertise his product. These can be newspaper, television, radio, which will help him to target the large population. आप जानते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक बड़े पॉपुलेशन के साथ अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट ये कम्युनिकेशन जनरली वन वे होता है, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके बारे में स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, a mobile company offers a discount of ₹1000 to clear of inventory. Identify the method of sales promotion. एक कंपनी है जो अपना इन्वेंट्री ख़त्म करना चाहती है और इस इन्वेंट्री के लिए वो लोगों को क्या दे रही है, डिस्काउंट दे रही है। कितने रुपए का, 1000 रुपीज़ का, कि उसकी सारी की सारी इन्वेंट्री ख़त्म हो जाए। वहाँ पे वो कौन सा सेल्स प्रमोशन यूज़ कर रही है? सो यू नो वेर रिफंड नहीं, रिबेट नहीं, मुझे नहीं लगता रिबेट, क्वांटिटी डिस्काउंट नो, डिस्काउंट यस, क्वांटिटी गिफ्ट नहीं है, डिस्काउंट इज़ द राइट आंसर। ओके, सो यहाँ पर कंपनी दो तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, रिबेट भी दे रही है, डिस्काउंट देखिए अगर यहाँ वर्ड लिखा है 1000 रुपीज़ ऑफ, तो डिस्काउंट भी कह सकते हैं, रिबेट भी कह सकते हैं। सो रिबेट एंड डिस्काउंट इज सिमिलर थिंग। सो मुझे लगता है ऑप्शन बी एंड डी आर बोथ आर द करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21 इज रेफर्स टू ऑफर ऑफ सेल्स एंड रिटर्न ऑफ पेमेंट इज ईजी इंस्टॉलमेंट विदाउट एनी इंटरेस्ट चार्ज देयर ऑन। यानी कह रहा है कि अगर आपको हम सेल का ऑफर दें, ठीक है, कि मैं आपको बेचना चाह रहा हूँ कोई प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ कि आप उस प्रोडक्ट का पेमेंट ईजी इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट चार्ज के। यानी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, आपको सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू देनी है, वो भी किस फॉर्म में, जैसे 20,000 रुपीज़ का आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट की वैल्यू आप 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, डेट इज़ 5000, 5000, 5000, 5000, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे, और उस पर आपको कोई इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट नहीं देना है तो आप देखो यहाँ पे सैम्पलिंग तो होगा नहीं, यूजेबल बेनिफिट्स नहीं है, क्वांटिटी गिफ्ट नहीं है। इट इज़ अ राइट आंसर इज फुल फाइनेंस एट द रेट ऑफ 0%। आपको पूरा का पूरा पैसा फाइनेंस के थ्रू मिल रहा है। सो दिस द राइट आंसर इज full finance at the rate of 0%. So next क्वेश्चन पे जाने से पहले हिंट देख लेते हैं। सम कंपनी ऑफर द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट इन रिटर्न ऑफ पेमेंट इन ईजी इंस्टॉलमेंट विदाउट एनी चार्ज देयर ऑन। दिस इज यूजुअली अवेलेबल ऑन व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स। यानी ये जनरली सारे प्रोडक्ट पे अवेलेबल नहीं होता, ये व्हीकल्स पे अवेलेबल होता है। अगर आप कोई कार, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जो महंगे होते, लाइक AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स एंड कंज्यूमेबल ड्यूरेबल, यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट पे जनरली फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ अ मैन्युफैक्चरर अचीव अ ब्रेक थ्रू बाय डेवलपिंग अ कार इंजन। अगर एक मैन्युफैक्चरर है जिसने एक कार इंजन डेवलप किया है विच कैन रन ऑन बोथ पेट्रोल एंड डीजल। अब ये कार जो है वो पेट्रोल से भी चल सकती है और डीजल से भी चल सकती है। एंड दिस न्यूज़ इज कवर्ड बाय टेलीविज़न और रेडियो और न्यूज़पेपर इन फॉर्म ऑफ अ न्यूज़ आइटम। सो ये जो पूरी न्यूज़ है वो पूरे टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर सब में पब्लिश हो रही है क्योंकि ये एक तरह का न्यूज़ है। इट वुड बी अ टर्म्स दैट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट बोलेंगे, सेल्स प्रमोशन बोलेंगे, पर्सनल सेलिंग बोलेंगे? नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज़ अ
पब्लिसिटी, यू नो वेरी वेल, अगर हम कोई इनोवेशन करते हैं और ये इनोवेशन हमारी सोसाइटी के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है या सरप्राइजिंग होता है, तो यू नो वेरी वेल इट इज़ कॉल्ड पब्लिसिटी। ये एडवर्टाइजिंग नहीं है, ना ये सेल्स प्रमोशन है, ना ये पर्सनल सेलिंग है, ये पब्लिसिटी का पार्ट है। इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स, बिकॉज यू नो वेरी पब्लिसिटी इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स। इसके लिए हिंट भी दिया हुआ है। Here in question, in case of a publicity, because of Indian manufacturer would benefit from the such dissemination of information about his achievement by media, but would not bear any cost for the same. Yes, इसके लिए कोई cost वो bear नहीं कर रहे हैं। And you know very well, चाहे हम प्रोडक्ट मिक्स की बात करें, चाहे हम प्राइस मिक्स की बात करें, चाहे हम प्लेस मिक्स की बात करें, चाहे हम प्रमोशन मिक्स की बात करें, इन सब के लिए कंपनी को कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। बट पब्लिसिटी क्या होती है? एक तरह की अचीवमेंट होती है जो कंपनी गेन करती है अपने इनोवेशन टेक्निक से, और जिसके लिए उसे कुछ भी पे करना नहीं पड़ता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट, दिस इज 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशन हेल्प इन अचीविंग विच ऑफ द मोस्ट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। वेरी, बहुत ही क्लियर, फिर सुनिएगा। एक पब्लिक रिलेशन, एक अच्छा पब्लिक रिलेशन क्रिएट करना, इसमें से किस मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। यानी अगर आपका अपने पब्लिक के साथ एक अच्छा रिलेशन होगा तो आप इसमें से कौन सी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। बिल्डिंग अवेयरनेस, बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, स्टिमुलेट सेल्स फोर्स एंड ऑल दी अबव। सोचिए, बिल्डिंग अवेयरनेस, यस, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाएगी क्योंकि आपका एक अच्छा रिलेशन है लोगों के साथ। बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ होगी, यानी आपकी गुडविल इंक्रीज़ होगी। स्टिमुलेट सेल्स फोर्स, आपका सेल्स जो है, सेल्स की जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। सो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ द राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो द राइट आंसर इज़ ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 इज़ ऑल ऑफ द अबव। Okay, so now we will move to the question number 24. The question number 24. A garment showroom wants to promote its sales. It has introduced a scheme of 50% plus 40% off. It is an example of which sales promotion techniques. यानी एक गारमेंट कंपनी है जिसने क्या किया, अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए उसने एक स्कीम लॉन्च की। वो स्कीम थी 50% प्लस 40% ऑफ। तो ये सेल्स प्रमोशन की कौन सी टेक्निक है? तो ऑप्शन आर डिस्काउंट, ऑप्शन बी इज़ लकी ड्रॉ, ऑप्शन सी क्वांटिटी गिफ्ट, ऑप्शन डी यूजेबल बेनिफिट। थिंक। लकी ड्रॉ नहीं, क्वांटिटी गिफ्ट। क्वांटिटी गिफ्ट क्या होता है? जब बहुत सारी चीज़ें। यूजेबल बेनिफिट्स भी नहीं है कि आपको उससे ज़्यादा कुछ बेनिफिट मिले। जैसे अगर आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा और उस प्रोडक्ट पे आपको कोई अलग तरह का प्रोडक्ट भी मिल रहा है जिससे आप मल्टीपल बेनिफिट एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ डिस्काउंट बेयर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्कीम में। आप यू कैन सी दैट स्पेशली राइट डाउन 50% प्लस 40% ऑफ, यानी 50% तो पहले ऑफ था, अब 40% और एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिलेगा। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्काउंट। द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन of the chapter number 11, it is a department store is adopting a sales promotion technique in which scratch card are used. Name this technique. You know very well, आप कभी कभी कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट के साथ आपको स्क्रैच कार्ड मिलता है, आप इसको स्क्रैच करते हो, स्क्रैच में आपको कुछ भी रिवॉर्ड मिलता है। जैसे आप कैशबैक में भी देखते हो पेटीएम में कि आप कोई ट्रांजेक्शन के आपको स्क्रैच कार्ड मिला, आपने उसको स्क्रैच किया, कभी कभी लिखता है बेटर देन नेक्स्ट टाइम, अनलकी, कभी कभी आपको ₹6 कैशबैक, ₹10 कैशबैक, ₹20 कैशबैक, तो आपको कैशबैक भी मिलता है। सो ये तो सेल्स प्रमोशन का टेक्निक है, ये प्रमोशन मिक्स का सेल्स प्रमोशन के क्राइटेरिया में आता है। बट इसमें कौन सा टेक्निक है सेल्स प्रमोशन का? रिफंड है, इंस्टेंट ड्रॉ है, असाइन गिफ्ट, क्वांटिटी गिफ्ट है कि यूजेबल बेनिफिट्स है? यस, राइट, इट इज़ एन इंस्टेंट ड्रॉ। मतलब आप तुरंत, लकी ड्रॉ नहीं है, इट इज़ इंस्टेंट ड्रॉ, यानी आपको तुरंत एक स्क्रैच कार्ड मिला, आपने उसको देखा, रिफंड तो मिल नहीं रहा है, क्वांटिटी गिफ्ट भी नहीं, यूजेबल बेनिफिट्स नहीं। सो यू कैन सी दैट we discussed a very important 25 multiple choice question related to the chapter number 11, that is a marketing. And now we will move to the chapter number 12 and we discuss the few important multiple choice question of chapter number 12, that is a consumer protection. So we start the questions one by one, and
Now I want to request to all the student कि before starting this section of this video, please revise all the topics which are covered in the chapter number 12. तभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने में एक तरह से इंटरटेनमेंट भी लगेगा, आपको समझ में भी आएगा. बट अगर आप चैप्टर्स अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो आपको क्वेश्चंस की स्कीम नहीं पता होगी, उस क्वेश्चन की क्राइटेरिया नहीं पता होगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सेक्शन स्टार्ट करने से पहले आप पहले से कंज्यूमर प्रोटेक्शन के सारे टॉपिक्स को रिवाइज करें. सो लेट्स वी मूव टू द चैप्टर नंबर 12, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. So the first multiple choice question of 1 marks, that is question number 1 of chapter number 12, is that which of the following is an association of trade and is engaged in the protection of consumer interest. यानी इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा और एसोसिएशन है ट्रेड का जो कि कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट. सेबी, नो, सेबी इज अ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता है. आरबीआई नहीं. सीआईआई एंड आईसीआईसीआई. आईसीआईसीआई तो बैंक है, तो राइट आंसर इज कंज्यूमर इंटरेस्ट के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, दैट इज अ कंज्यूम सीआईआई. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. सेलर ऑफन अडॉप्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस टू इंक्रीज द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट. सेलर जो होते हैं जनरली अपने सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए वो जनरली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं. गिव फ्यू एग्जांपल ऑफ सच प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय द सेलर. आपको उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल आपको 4 ऑप्शन में दिए हैं ताकि आप उनमें से आइडेंटिफाई करें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इज़ करेक्ट जो ये बताता है कि सेलर अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ अ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, फेक प्राइस स्टिकर्स ऑन द प्रोडक्ट, सप्लाई ऑफ चीफ क्वालिटी प्रोडक्ट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. यस, ये भी एक इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. फेक प्राइस स्टिकर ऑन प्रोडक्ट पे एक्चुअल प्राइस उसकी कुछ रहती है लेकिन उस पर स्टिकर लगा के उसके प्राइस को इंक्रीज़ करके कहीं कहीं बेचना. सप्लाई ऑफ चीप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आपको अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स बता के चीप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को सेल करना. सो राइट ऑप्शन इज ऑल द अबव. सेलर जनरली यूज्ड misleading advertisement, fake price stickers and supply of cheap quality of product to increase the sale of their product and their profits. And you can also learn and read the hint. With growing competition and in an attempt to increase the sales and market share, seller often increase in unscrupulous, exploitative and unfair trade practices like defective and unsafe product, adulteration, false and misleading advertising, hoardings and black marketing. Okay, now we will move to the question number 3 of chapter number 12, that is which of the following is a reason why a businessman should lay emphasis on the protection of consumer and their interest. आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा रीज़न है जिसके कारण बिजनेसमैन के लिए कंज्यूमर की प्रोटेक्शन और उसके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है. यानी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना दोनों ही ज़रूरी है. दैट ऑप्शन इज़, यू नो वेरी वेल, इट इज़ अ टॉपिक ऑफ एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, येस, फॉर फुलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, येस, टू अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन. सो all the option are correct. So the correct option is all the above, because from the above reason consumer protection is very important from the businessman point of view. Next is question number 4 is Samay purchased a watch from a Titan gallery as a proof of purchase. What she should ask for? समय एक लड़की का नाम है जिसने कि समय उसने वॉच खरीदा टाइटन गैलरी से और परचेस के प्रूफ के लिए उसे क्या मांगना चाहिए? इनवॉइस, कैश मेमो, दैट इज़ अ इनवॉइस, कैश मेमो, वारंटी कार्ड एंड नन ऑफ दीज. तो समय ने टाइटन गैलरी से टाइटन की वॉच खरीदी, उसे प्रूफ परचेस के लिए क्या लेना चाहिए?
मुझे तो लगता है वारंटी कार्ड भी तो लेना चाहिए, इनवॉइस और कैश मेमो। इनवॉइस तब हम लेते हैं जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, तो यहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे उसने कैश देकर ही गुड्स खरीदा होगा, वॉच खरीदा होगा। सो द राइट आंसर इज कैश मेमो। हिंट में लिखा है इट इज़ अ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क फॉर अ कैश मेमो ऑन परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट्स वुड सर्व एज अ प्रूफ ऑफ परचेसमेंट। याद रखिएगा, कैश मेमो हम इसलिए खरीदते हैं ताकि परचेस का एक प्रूफ होता है कि हमने किसी गुड्स को किस पर्टिकुलर सेलर से ख़रीदा है, ताकि इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव मटेरियल, इन केस ऑफ द वारंटी एंड गारंटी ऑफ सच प्रोडक्ट वी कैन ईजली क्लेम the warranty and guarantee on this product. The number 5th has very important question. Which consumer rights gives the freedom to business firm to set up their own grievances cell? याद रखिएगा कि कंज्यूमर राइट का, कंज्यूमर राइट यू नो वेरी वेल, सिक हर, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन एंड राइट टू बी सीक रिड्रेसल। आपको ये बताना है कि 6 राइट्स, मैंने आपको 6 राइट्स के नाम याद दिला दिए, उसमें से कौन सा ऐसा राइट है जो कस्टमर को ये राइट देता है, फ्रीडम टू बिजनेस फर्म टू सेट अप देयर ओन कंज्यूमर ग्रीवेंसेस सेल। यानी बिजनेस फर्म्स को ये फ्रीडम देता है कि वो खुद का कंज्यूमर ग्रीवेंसेस सेल्स भी ओपन कर सकते हैं। क्यों? right to consumer education, right to choose, right to be heard, right to be informed. The right answer is right to be heard, because you know very well कंज्यूमर को ये राइट मिला होता है कि वो अपनी कंप्लेंट्स को प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर एंड सेलर तक पहुंचाए, तो वो अपनी बातें कैसे लोगों के सामने रखेंगे, उसके लिए बिजनेस फर्म्स को खुद का कंज्यूमर ग्रीवेंसेस सेल्स भी ओपन करना पड़ता है, ताकि कंज्यूमर अपने, अगर राइट टू बी हियर्ड यूज़ कर रहा है, अगर उसे किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपनी प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरर या सेलर तक पहुंचा सके और उसका सॉल्यूशन या रिलेटेड क्लेम के लिए डिमांड कर सके। अगर वो क्लेम और सॉल्यूशन प्रॉपर कंपनी से नहीं मिल पाता है, तो यू नो वेरी वेल कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में भी क्लेम फाइल कर सकता है, कोर्ट सू कर सकता है अगेंस्ट द सेलर, अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर। ओके, so now we will move to the next question, and you can see that the hint, the consumer has a right to file a complaint and to be heard in case of dissatisfaction with a goods or a service. It is because of this reason many enlightened business firms have set their own consumer services and grievances cells. आप देखते होंगे, चाहे DGS सर्विस के केस में हो, चाहे वो टेलीकॉम सर्विसेज के केस में हो, चाहे वो आप किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी आपको एक कंज्यूमर नंबर उसमें दिया होता है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिससेटिस्फेक्शन रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट, तो यू कैन कॉल टू द मैन्युफैक्चरर ऑफिस। एज वेल एज अगर आप टेलीविज़न में भी कोई सीरियल देखते हो, तो यू कैन सी दैट एक कंज्यूमर ग्रीवेंसेस के लिए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऐड भी नीचे आता है, चलता रहता है। यू कैन सी दैट कि अगर आपको किसी प्रोग्राम से कोई भी शिकायत है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन कंप्लेन टू देम। सो now we will move to the question number 6. To publish a magazine under the title of उपभोक्ता जागरण is example of which right of consumer? एक मैगज़ीन पब्लिश होती है, जिस उस मैगज़ीन का जो टाइटल है वो है उपभोक्ता जागरण। ये उपभोक्ता को उनके राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताने के लिए एक मैगज़ीन क्या होती है, पब्लिश होती है। अब आपको बताना है ये कंज्यूमर के किस राइट का एग्जांपल है। राइट टू बी इन्फॉर्म, नो, वो तो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। राइट टू सेफ्टी, नहीं। राइट टू बी हर्ड, नहीं। द राइट आंसर इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए, कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब है कंज्यूमर को अपने राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिफरेंट चेंजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि अगर उसे कोई डिससेटिस्फेक्शन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ क्लेम करेगा, कहाँ कंपनसेशन डिमांड करेगा। He have a proper knowledge about this. So consumer have a proper knowledge and education about their claims and compensation. So it is very important to exercise their right, that is a right to consumer education. एक consumer को एक ये right है कि वो अपने products से related कोई भी प्रकार का या प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो अपना राइट टू बी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकता है। और अगर
अगर उसे अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी या लॉज में कोई चेंजेस हुआ है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन यूज़ कर सकता है। सो अगर कोई कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उपभोक्ता जागरण नाम की मैगजीन पब्लिश करता है तो वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को एजुकेट करना चाहता है, कंज्यूमर को अवेयर करना चाहता है। बिकॉज यू नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट we can focus the constitution, the act totally focus on the protection and promotion of the consumer interest as well as focus on the consumer education. Next one is a question number 7. So the question number 7, as you can see that according to the question number 7, which of the following is the relief available to the consumer under the Consumer Protection Act 1986? आपको ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा रिलीफ कंज्यूमर को प्रोवाइड किया गया है। रिलीफ मीन्स कंज्यूमर को कौन से अगर वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में कभी कभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर फोरम में अपील करता है तो उसमें क्या क्या रिलीफ का कॉन्सेप्ट है। So the option is to remove the defect in goods or deficiency in service. Yes, it is a right. वो उसे जो भी गुड्स में डिफेक्शन है उसके कारण उस गुड्स को रिमूव किया जा सकता है। सर्विस में कोई डिफिशियंसी है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। टू रिप्लेस द डिफेक्टिव गुड विथ अ न्यू वन फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, किसी नए गुड्स के साथ पुराने गुड्स को रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। और जो नया गुड्स हो वो किसी प्रकार का कोई डिफेक्टिव उसमें ना हो, ये भी रिलीफ मिल सकता है कंज्यूमर को। टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट और द चार्ज पेड फॉर द सर्विसेज, अगर उसने किसी गुड्स को या प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जितना पैसा पे किया है तो उस पैसे का रिफंड में मिल सकता है या सर्विस के लिए जितना पैसा उसको चार्ज किया गया है वो भी रिफंड मिल सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी कैन सी दैट ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। द फॉलोइंग, इसके अलावा बहुत सारे रिलीफ्स हैं विच कैन अवेलेबल टू अ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट अ सेलर, मैन्युफैक्चरर और अ डीलर ऑफ अ गुड्स हुज गुड्स आर इन एनी मैनर। कह रहा है कि कोई भी सेलर के अगेंस्ट अगर हम कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं तो वो गुड्स किस मैनर का होना चाहिए, परफेक्ट, फ्लॉलेस और डिफेक्टिव। सो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर कोई गुड्स डिफेक्टिव है तभी तो जाकर हम कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो द राइट आंसर इज सी, कि अगर कोई भी बंदा किसी गुड्स से सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब है वो गुड्स डिफेक्टिव है। अगर वो गुड्स परफेक्ट होता तो इसका मतलब वो गुड्स को लेकर कोई कंप्लेन करता ही नहीं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, हु among the following can be president of National Consumer Dispute Redressal Commission? इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, यू नो वेरी वेल। डिस्ट्रिक्ट फोरम के लिए प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या चाहिए, जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट होने के लिए क्या चाहिए, जज ऑफ अ हाई कोर्ट। और अगर प्रेसिडेंट बनना है ऑफ द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इट मीन्स अगर नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। सो द राइट आंसर इज जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो अगर कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज हो या जज रहा हो, सो ही कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ अ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। सो द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे video is that Mr. Surya has purchased a product and found it's defective. The seller denied taking its back. Mr. Surya can file complaint under the Consumer Protection Act 1986. Within how much time complaint can be filed from the date on which the cause of action has been arises? ये तो बहुत easy question है, you know very well कि easy question आपको लग रहा होगा। जैसे अगर किसी सूर्या ने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उस प्रोडक्ट को डिफेक्टिव पा लिया और जब वो सेलर ने उस प्रोडक्ट को वापस लेने से भी मना कर दिया, सूर्या ने एक प्रोडक्ट खरीदा और प्रोडक्ट को रिटर्न करने गया तो सेलर ने उस प्रोडक्ट को लेने से मना कर दिया,
अब मिस्टर सूर्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कितने दिन में उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं? हाउ मच टाइम कंप्लेंट कैन बी फाइल फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन हैज़ अराइज, यानी जो ये प्रॉब्लम आ रही है उसकी कितने टाइम के अंदर वो जाकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस दाखिल कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज विद इन 2 ईयर्स, 2 साल में। ये याद रखिएगा, 2 साल में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। बट अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम का कोई डिसीजन आता है तो 30 डेज़ के अंदर आप स्टेट कमीशन जा सकते हैं। स्टेट कमीशन का डिसीजन आता है तो आप 30 डेज़ में सेंट्रल कमीशन जा सकते हैं। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स इज डिफरेंट फ्रॉम द कंप्लेन, एंड if any person dissatisfied with the decision from the forum, so he can go to the upward forum within a 30 days। तो वो कॉन्सेप्ट अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट आपने परचेस किया और उस प्रोडक्ट को लेकर आप सेटिस्फाइड नहीं है, वो डिफेक्टिव है, तो आपको 2 ईयर्स का टाइम मिलता है कि यू कैन गो टू द कंज्यूमर फोरम within a 2 years of the problem। So today we discussed few of the important multiple choice question related to the chapter number 11, as well as almost 10 multiple choice question of chapter number 12, that is the consumer protection।